somebody came and told us that we don't know what happens, but CBF Dwarka has a challenge in saying the word Amen after prayer. और किसी ने इस प्रकार एक टिप्पणी की कभी कि एक सभा के तौर पर हमें शायद आमीन जोर से बोलना जो है थोड़ी दिक्कत होती है। So do we have a challenge, CBF Dwarka? ऐसा कोई दिक्कत है हमें? Can I hear an amen? All right. So why don't we do that when there is a prayer and we end a prayer? Why are we so silent? और Why is there that we don't say the word amen loudly? और हमें आमीन बोलने में क्यों दिक्कत होती है जब एक प्रार्थना खत्म होता है या संपन्न होता है? That's not my message this morning. होना नहीं चाहिए। Okay. So Rajesh asked me what is the passage for the sermon. और भाई राजेश ने मुझसे आज सुबह या कल पूछा कि आज का जो आप किस भाग से जो है प्रचार करेंगे। So I said Matthew chapter 5 verse 6. और मैंने कहा कि मत्ती उसका 5 और उसके 6वीं आयत से आज हम मनन करेंगे। He's like, I have to give Bible reading to somebody. Will he only read one verse? और उसने ये पूछा कि मुझे बाइबल रीडिंग देना है किसी को तो केवल एक ही वचन पढ़ेगा क्या? I said that's no problem. I think it's good to read the Beatitudes as many times we can. और मैंने इस प्रकार कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे जो धन्य वचन है उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि अच्छी बात है और हमें बार-बार उस पर मनन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। All right, so today's the passage or the sermon is based on Matthew chapter 5 verse 6. और आज का जो मनन है हम खास तौर से मत्ती उसका 5वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत को हम खास तौर से मनन करना The चाहेंगे। title, the way I have put it up, is Satisfied in God. और इसका शीर्षक जो मैंने सोचा है वो है कुछ इस प्रकार कि हम परमेश्वर में अपनी संतुष्टि को पाते हैं। So let's read the verse together. What does it say? और 6वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। Do we have our Bibles? Do we have our Bibles? हम एक साथ मिलकर जोर से Are we पढ़ेंगे। present here? All right, let's read it together. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. और कुछ इस प्रकार कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। All right, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And that's what we're going to learn today, this morning. और आज हम इसके बारे में ये भूख और प्यास ये इस धार्मिकता के लिए क्या है इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। All right, children, there are three things that we're going to learn today from this verse. और आज हम 3 बातों को हम सब इस भाग से सीखने की And I कोशिश want करेंगे। all the children here to remember that. और खास तौर से बच्चों से ये विनती है कि वो ध्यान से सुने क्योंकि हम 3 बातों को सीखेंगे। So no drawing, no coloring, listen to the word, okay? इसलिए और कुछ भी मत कीजिएगा, केवल कान खोल के सुनिएगा। And this is not just for the children, for everybody. So 3 things. The problem that mankind has, और 3 चीजों को हम देखेंगे कि मनुष्य के साथ क्या दिक्कत है, the provision mankind has, और मनुष्य को क्या प्रावधान दिया गया है, the promise mankind और has. तीसरी बात है कि एक वाचा जो मनुष्य को दिया गया है वो क्या है। So what is the first one? पहला क्या है? The problem mankind has. कि मनुष्य के साथ क्या दिक्कत है या परेशानी क्या Children, है, the second one, the provision mankind has. और मनुष्य को क्या प्रावधान दिया गया है उसके बारे में And the दूसरा है। third, the promise the mankind has. तीसरा जो है वाचा या आशीष। All right, so let's look at the verse, the way it is structured. तो हम जो उस आयत को हम 6वें आयत को एक और बार से ध्यान से पढ़ेंगे। Blessed are those who hunger and thirst. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे I do हैं। not want to spend a lot of time on the word blessed. If you were we had a cottage meeting at Brother Abhishek Chandra's place, we had discussed blessed as a word and what it means. और भाई अभिषेक चंद्रा के यहाँ जब हम इस आयत पर मनन कर रहे थे तो धन्य शब्द का जो महत्व है उस बात पर हमने काफी ध्यान किया। But a quick reminder for all of us. Lot many times I have also said that blessed means happy. और कई बार जो है मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि धन्य का मतलब क्या है, मूल अर्थ क्या है, और कई बार मैंने इस बात को बोला है कि उसका मतलब
खुश होना है या खुशी अपने दिल में होना है, इस बात but को when you दर्शाता है। but when you dig deep into the word, लेकिन जब हम ध्यान से इस शब्द पर मनन करते हैं, it's really not just happiness. और ये केवल एक खुशी की बात नहीं है। Once blessed means in being in a place which is spiritually prosperous and independent of the circumstances that you are in. और धन्य का जो अवस्था है, धन्यता जो होता है, वो एक ऐसा आत्मिक क्षेत्र है हमारे जीवन में है जहाँ हमारी जो परिस्थिति है उससे कोई फर्क उस स्थिति को या उस धन्यता को नहीं पड़ता है। So this is a state bestowed by God. God brings you in to the state of blessedness. और ये इसलिए है क्योंकि धन्यता जो है मनुष्य से नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की ओर से आता है और दिया जाता है। We can try as much as we want to be blessed, but we can't. God brings us in. और हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें खुश होने की या धन्यता अपने जीवन में लाने के लिए, ये कभी हमसे संभव नहीं है, ना कि हमसे, ना कि हमारे प्रियजनों से, लेकिन केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ओर से ही ये संभव है। When the word blessedness is used here, it's not temporal. It is not based on circumstances. You know, the day is good, it looks good, so I'm blessed. No, God has brought you into this place, into the state of blessedness. It is permanent, it is eternal in nature. और खास बात यह है कि ये जो धन्यता एक अवस्था है जिसमें परमेश्वर हमें लेकर आता है, और इसमें हमारी बाहरी जो परिस्थिति है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। So the way I had summarized last time was to say this it won't be wrong to say this, that we are happy because we are blessed. We are happy because we are blessed, not that we are blessed because we are happy. I had summarized that point. Let me repeat that one more time. We are happy because we are blessed, not that we are blessed because we are happy. Our happiness doesn't determine our blessedness. Our blessedness determines our happiness. और कई बार अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवनों में काफ़ी ऐसे समय आते हैं जब हम काफ़ी खुश होते हैं, राइट? आज पापा का बर्थडे है तो काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज सेंटर ऑफ अटेंशन वो रहेंगे, राइट? लेकिन ऐसे काफ़ी टाइम आता है जब हमारे जीवन में जब खुशी आती है तो हम सोचते हैं कि हम बड़े धन्य हैं, लेकिन ये सही अवस्था नहीं है। लेकिन सही अवस्था ये है क्योंकि हम धन्य की अवस्था में, धन्यता की अवस्था में हैं, हम खुश हैं या हम खुशी करते हैं। So is that clear? So blessedness is a state where God brings you in. और धन्यता की ऐसी अवस्था है जिसमें परमेश्वर आपको लेकर आता है। Now let's jump into the verse. Once blessedness has been cleared off, the next word, the part of the verse says, "Blessed are what? Those who hunger and thirst." और जिस प्रकार वचन कहता है कि धन्य है वे जो उसकी धार्मिकता के और प्यासे और भूखे हैं। Now the first word that I want you to all note, the children especially, there are two parts to this: those who and hunger and thirst. We'll break it down. और इस वचन में अगर हम देखें तो दो भाग हैं। पहला है कि कौन, जिसमें लिखता है, जो लिखने वाला कहता है कि जो, और दूसरा है कि भूखे और प्यासे। So those who and hunger and thirst, we're going to spend some time on that. और ये क्या है, इन दो बातों को हम ध्यान से Because from सीखेंगे। here we understand the problem of man. और क्योंकि हम इस बात को अगर हम सही से समझें तो हम मनुष्य की के साथ क्या दिक्कत है उस बात को और गहराई से Now when Jesus says, Christ says that those who, he is now referring to a section of people, there is a category of people now made within the kingdom of God, within the kingdomers. और जब परमेश्वर कहता है कि जो, उसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के राज्य में है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में या उनको संबोधित करता है। It doesn't say everybody is going to hunger and thirst for righteousness. Does it say that? What does it say? Those who. So it's particularly Christ is creating a category of people who are going to do something. और जब परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को देखता है या अपने लोगों को देखता है तो वो ये नहीं कहता है कि हर एक जो उसके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होंगे, वो क्या कहता है? जो। उसका मतलब है कि जो कोई, उसका मतलब ये है कि कुछ एक भाग है, सभी लोग नहीं, कुछ भाग जो
भाग जो लोग के हैं वो इस प्रकार भूखे और प्यासे होंगे So what उसके do we धार्मिकता के understand? लिए। Some will hunger and thirst for righteousness, and some won't. और इसका मतलब बड़ा साफ है कि हम जब मनुष्य को देखते हैं तो एक भाग ऐसा है जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए प्यासी है और भूखे हैं, और दूसरा क्या है, जो नहीं है। You once in the church, as we sit here, we will be, some of us will be hungering, we have a hunger for and thirst for righteousness, some will not have the same. और जब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी कलीसिया को देखते हैं या फिर चर्च को देखते हैं एक ऊपरी तौर से, तो हम इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि हम में से भी कुछ है जो इस धार्मिकता के लिए प्यासे और भूखे नहीं The next हैं। word that Christ uses is those who hunger and thirst. और जो कोई उस धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है, उस बात को See, परमेश्वर Christ इस्तेमाल uses करता the है। most basic need of the mankind. और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य की जो सबसे बेसिक जो आधारिक। चीज़ें हैं, आधारिक चीज़ें हैं, उस बात को लेकर इसको संबोधित करता He है। doesn't go to kapra makan, he stays on what? Roti. He stays on the most basic thing, because we all, as mankind, we all hunger and thirst. और हम सब जानते हैं, ये एक बात को हम हमेशा सुनते हैं कि हमारी जो बेसिक या आर्थिक चीज़ें हैं वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान है। लेकिन परमेश्वर जब बात करता है, जब भूखे और प्यास की बात करता है, तो केवल एक बात पर वो केंद्रित रहता है, वो है रोटी के ऊपर। See, dear ones, today in the modern world, a lot of us probably don't really understand the meaning of the word hunger or thirst as such. और अगर हम सच्ची बात अपने आप से पूछें, सवाल अपने आप से पूछें, तो आज की जो तारीख है, क्योंकि हम संतृप्त हैं काफ़ी मायनों में, तो हम शायद भूख और प्यास क्या होता है हम शायद सही मायनों में समझते नहीं हैं। But if you go back to the history, and when Christ, in the time of Jesus Christ, and when this is being written, hunger and thirst is real for the people there, because there were famines and there were droughts, and people, millions and millions of people would die because of famine and because of drought, because they had nothing to eat. लेकिन जब ये लिखा गया था, या प्रभु यीशु मसीह के उस समय में अंतराल में अकाल जो है बड़ी सामान्य बात थी, और काफ़ी लोग जो हैं बिना खाए पिए जो है मर जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं होता Do you था। remember the story of the widow of Zarephath? What is she saying? I'll eat, take this, my son and I will eat, and we will die. Hunger led to death in that region. That was what hunger meant, what thirst meant, because people would die, there would be nothing to sustain them. और पहले राजा में हम इस कहानी को हम देखते हैं, जहाँ पे ये विधवा जो ज़ाराफात की थी, वो कहती है कि हमारे पास केवल एक थोड़ा सा जो आटा है और थोड़ा सा तेल है, एक वक्त की जो है हम रोटी बना सकते हैं, और मैं और मेरा बेटा उसके पश्चात मर जाएंगे, क्योंकि अकाल जो है एक वास्तविकता थी उस समय के उस समय में। And the second thing that we understand from the word hunger and thirst, is used in present continuous. और अगर हम देखें जो हंगर है या भूख है, उसका जो लेख है या उसको जिस प्रकार बताया गया है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर वर्तमान काल में. वर्तमान काल में जो है उसका इस्तेमाल किया गया What है। does it mean? It's not that as mankind, can we just eat once and be done? उसका मतलब यह है कि क्या हम केवल एक बार बहुत अच्छे से खाएं और उसके बाद हो जाता है, हम उसके बाद भूख नहीं लगती? Do we hunger continuously? और क्या हमें बार बार भूख लगती है? So therefore, what Christ is saying is that this is the hunger and thirst. Blessed are those who hunger and thirst for something. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे होते हैं। किस बात के लिए? उसकी धार्मिकता के So लिए। the first thing that we understand is there is a section that Christ creates. There are people who hunger and thirst for righteousness. There are people who don't hunger and thirst for righteousness. और इसलिए जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो एक बात बड़ी साफ हो जाती है कि जब परमेश्वर उन लोगों से बात करता है या अपने राज्य से बात करता है, तो एक विभाजन को हम देखते हैं कि ऐसा संख्या जो लोग जो भूखे और प्यासे होते हैं उसकी धार्मिकता के लिए, और दूसरे जो भाग होता है वो लोग नहीं होते Now, हैं। what is the problem here, but what is the problem of mankind? इसमें
हम मनुष्य की क्या क्या दिक्कत को हम यहाँ पर देखते हैं So या when the समझते word हैं। hunger and thirst is used, it is used with the, if you read the whole verse, what does it say? Blessed are those who hunger and thirst for, and for they shall be satisfied. और जब हम देखते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस Now, बात को हम the पढ़ते what हैं। Christ is bringing out as man's biggest problem is that we are always in hunger and thirst for satisfaction. We're looking for something to satiate our souls. क्योंकि मनुष्य के बारे में परमेश्वर इस बात को दर्शाता है, बड़ी साफ तौर से बताता है हमें कि हमारी जो अवस्था है वो सबके लिए है कि हमारा जो भूख और प्यास कभी भी संतुष्टि या तृप्ति में नहीं आता। हमें किसी बात के लिए हमेशा जो है एक बात हम तृप्त नहीं रहते किसी बात से, तो हम किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहते Dear हैं। ones, what Christ is telling in this to the people that you're listening and this morning is, as a church and as His kingdom, as people who belong to the kingdom, we will and we are at some point of time and constantly we are hungry and thirsty for something. और प्रभु यीशु मसीह इस धन्य वचन के द्वारा इस बात को दृढ़ करना चाहता है हमारे जीवनों में कि हमारा जो नेचर है वो ये है कि हम हमेशा भूखे और प्यासे रहेंगे, लेकिन क्या हम उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे? ये सवाल आज हमारे So the सामने first thing खड़ा I want करता you है। to understand is the problem is we will always constantly hunger and thirst for something. और वास्तविक बात यह है कि हम किसी ना किसी चीज के लिए हमारा मन जो है वो भूखा और प्यासा But रहेगा। Christ lays out the problem saying that we're going to hunger and thirst for what? Satisfaction in our life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस 6वें आयत में एक बात को बड़ी सिद्ध करता है कि हम इस बात की खोज क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो मन में जो है तृप्ति हो। Dear ones, that is where Ecclesiastes chapter 3 comes into picture, because God has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's hand. Now, what happened is, man was supposed to hunger and thirst for God. That was to be his point of reference. He should have been always focused on God, and that should have been his hunger and thirst. और इस प्रकार एक्लीसियास्टिक्स 3 और 11वीं में हम इस प्रकार को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या प्रभु ने सब कुछ जो है खूबसूरत बनाया है और उसने हमारे दिलों में या मनुष्य के दिलों में एक अनंत कालता को रखा है। Once when God created Adam and Eve, they hungered and thirst. They had the thirst for God and nothing else. और जब हम देखते हैं उस अदन के बगीचे में जब आदम और हव्वा थे, वो एक बात के लिए हमेशा संतृप्ति नहीं पाते थे पूर्णता, वो था प्रभु की धार्मिकता में, वो एक अच्छे मायने में, क्योंकि वो हमेशा उस बात के लिए भूखे और प्यासे रहते थे। Their hunger and thirst was quenched because they lived in God's presence. They had God and therefore they didn't want anything else. They didn't require anything else. और वो इस बात पे संतृप्ति पूर्णता प्राप्त करते थे क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा वास करते But थे। when sin entered, what happened? लेकिन जब पाप ने अपना दस्तक दिया तब क्या हुआ? God was taken away from their hearts. तो परमेश्वर जो है उनके दिलों से चला गया और कुछ और चीजें उनके जीवनों में या मन में आ गई। Now they don't have anything, or mankind has nothing that can satisfy them. और अब जो अगर हम मनुष्य की अवस्था को ध्यान से देखें तो ऐसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो परमेश्वर का स्थान ले सके, इसलिए हमें हमेशा वो खालीपन लगता So रहता what do we है। learn? We as people, we are constantly restless in our life. और इस बात को ये वाक्य दर्शाता है कि हमारे जीवनों में अगर हम इस बात को सच्चे बात मायनों में देखें या समझें या सोचें तो हमारे जीवन में भी हमारा दिल जो है किसी ना किसी चीज़ के पीछे या सोचता रहता है या फिर वो चीज़ें हमारे दिलों में घर करती रहती हैं। Once we just a minute, if you just do a self-evaluation, we will understand that as we are seated here, we are still restless about something. और अगर आप ये सवाल अपने आप से आज करें या भी करें, जब हम यहाँ बैठे हैं तब भी हमारे दिलों में या दिमागों में कुछ ना कुछ और दौड़ रहा है ना? बात सही है कि नहीं? So what the word is telling us this morning is
that this restlessness will continue to grow in our hearts till we find satisfaction in God. और मत्ती 5 और 6वीं आयत में इस बात को परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है कि जब तक हम अपनी तृप्ति या संतृप्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं देखेंगे या समझेंगे, तब तक क्या रहेगा, हम हमेशा जो है तृप्त महसूस नहीं करेंगे। Even this restlessness that Christ is referring to, which cannot be satiated, it moves and it enters every part of our life. और जब ये जो तृप्ति या हमारे जीवन में नहीं है, उस बात पर हम देखते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान में नहीं है। We buy a new phone. अगर हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं, It just takes to opening the box and then we are already bored of it. शायद वो जब तक वो बक्सा खुलता है या फिर तब जब अनबॉक्सिंग करते हैं हम, उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके बाद क्या है, खत्म। We'll look for we'll say that once I get a good house, a good home, I will be satisfied. और कई बार हम सोचते हैं कि अगर अच्छा घर इस जगह में मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, हम बड़े तृप्त हो जाएंगे। Once I get a good nice car, I will be totally satisfied. और एक अच्छी कार मिल जाए तो हम बड़े तृप्त हो जाएंगे। The job, the next job that I get, once I get that, I think I will be satisfied. अगला जो एक नौकरी, मुझे थोड़ा सा बढ़िया नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा 30-35% इंक्रीमेंट मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, सेटिस्फाई हो जाऊंगा। But guess what happens? लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं कि उसके बाद होता क्या है। Get a new house, you get in after just few months. That house starts feeling small for you. You want the next big house. लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो छोटी लगने लगती हैं, भले ही वो घर हो या फ़ोन हो या कुछ भी जो चीज़ें हो, वो क्या लगती हैं, वो छोटी लगती है और हमें लगता है कि ये अगला चीज़ जो है, जो बड़ी चीज़ है वो हमें संतृप्त करेगी। We are restless in our nature, and that shows up in our relationships also. और हमें किसी बात पे तृप्ति ना होना, ये हमारे स्वाभाविक नेचर या प्रकृति में है हमारे। We have a hunger and thirst for the things of the world. We have the hunger and thirst for creation because no longer is the creator in our hearts. जो रचना की गई वस्तुओं के लिए हमारा जो दिल भागता रहता है, लेकिन जो रचयिता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु परमेश्वर है, उसके पीछे हम कभी भी So let me ask this morning, CBF Dwarka, are we seated here? Are we restless about things? सवाल आज एक है, आज सुबह हमारे लिए, कि क्या हम उस परमेश्वर में अपनी संतृप्ति को पाते हैं या नहीं। What is that we hunger and thirst after this morning? और आज हमारे जीवनों में हम किस चीजों के पीछे भाग रहे हैं। Is that the things of the world that we feel that if I acquire it, I will be satisfied? क्या वो दुनियाई चीजें हैं जिनको हमें लगता है कि अगर वो चीजें हमारे जीवन में है तब हमें संतृप्ति होगी। You just feel that if I grab to this next opportunity, I will be way more satisfied than I am right now. क्या आपको लगता है कि एक अवसर अगर हमें अच्छा सा मिल जाए और उसमें हम कामयाब हो जाए, तब हमारे जीवन में वो संतृप्ति आएगी। Christ is saying this is the problem of mankind. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है बड़े साफ तौर से कि ये मनुष्य की दिक्कत है या समस्या है। Christ says that you hunger and thirst after things of the world, you will never ever be satisfied. क्योंकि वो कहता है बड़े साफ तौर पे कि अगर हम मनुष्य इन संसारी चीज़ों के पीछे भागते रहें या उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते रहें तो हम कभी भी उस संतृप्ति को नहीं पा सकते हैं। The young ones here, I'm asking you the question, what is that you hunger and thirst after? और जवान लोग के लिए, सभी लोग के लिए, हमारे जीवनों के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीज़ें हमारे मन में गर करती हैं। तो सवाल यह है कि आज हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे दिलों को गर किए हुए है। The people who are working, what is that you hunger and thirst after? Is it the next raise? Is it the next salary that you want to go? Is it the next opportunity that you want to get? Because then you feel satisfied. और जो हम काम करते हैं व्यवसाय में, क्या हम उस नौकरी को देखते हैं या फिर अगला इंक्रीमेंट को देखते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें लगता है कि अगर वो मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है? People who are married and who are in relationship, are you restless in that? जो लोग शादीशुदा हैं, क्या आप
अभी भी अपने मन में वो बेचैनी है आपके Dear ones, मन में। are you done and tired because of things that is happening and you want something new in life? और क्या आप ऐसे सोचते हैं कि हर दिन के जो दिनचर्या से हम परेशान हो चुके हैं, हमें हमारे कुछ नयापन चाहिए। Dear ones, Christ says, the more you hunger and thirst after the world, it will leave you deeply unsatisfied. और परमेश्वर इस बात को कहता है बड़ी साफ तौर से, क्या कहता है कि अगर हम दुनियाई चीज़ों के पीछे भागें और उसमें अपना मीनिंग या मतलब हम अपने जीवनों में देखें तो हम कभी भी संतृप्त नहीं होंगे। That's the problem that Christ lays out in front of us. We as mankind will hunger and thirst constantly because that's our nature. और यही बात को जो है प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ तौर से दर्शाता और स्थापित करता है, क्या कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार बनाई गई है कि हम किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा भूखे और प्यासे रहेंगे। But Christ says, if that's the problem, I have a provision, I have a solution for you. तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर ये मनुष्य की भारी समस्या है या केंद्र समस्या है तो उसका एक प्रावधान है मेरे पास। What is the provision that Christ says? That what are you supposed to hunger and thirst after? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम किस चीज के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए? Does Christ say that we hunger and thirst after the world, or is he putting up a provision for us? क्या प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, सारी जो वस्तुएं हैं उसके पीछे तुम भागो, उस पर अपनी तृप्ति ढूंढो, या तुम जो धार्मिकता मैंने जो तुम्हें दूंगा या दी है उस पर तुम तृप्ति ढूंढो। Christ gives us a provision that we as CBF Dwarka, we as his people, we are to hunger and thirst for righteousness. और हमारे लिए कलीसिया के तौर पर और हमारे आत्मिक जीवनों के एक ही उद्देश्य है, और इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की उस धार्मिकता के पीछे भूखे और प्यासे हैं। So let me clarify one thing, right? What exactly, or what does the word righteousness mean here? और जो धार्मिकता का जो मतलब क्या है उस बात को मैं थोड़ा सा समय लेकर बताना चाहूँगा। What the word here doesn't mean the righteousness that God gives to you. और जो धार्मिकता के बारे में जो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह बताता है वो उस धार्मिकता के बारे में नहीं है जो प्रभु हमें देता है। It's not about whether if you hunger and thirst after righteousness, you will stand right in front of God. वो इस बात को नहीं कहता कि क्योंकि तुम प्रभु के पीछे भूखे और प्यासे हो गए या उसके धार्मिकता के लिए प्यासे हो गए इसलिए तुम धार्मिक बनाए जाओगे। Because we've learned clearly in Romans that no matter what we try, we cannot make ourselves righteous. क्योंकि हमने रोमियो में इस बात को बार बार पढ़ा है या मनन किया है कि हम चाहे जो भी कर लें उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम अपने आप को धार्मिक नहीं ठहरा सकते हैं। We tend to move very quickly to the idea of being, trying to work and trying to find or trying to gain righteousness by ourselves. और हमारी एक और प्रवृत्ति यह है कि हम कई बार जो है बड़ी जल्दी इस बात पे ढल जाते हैं कि अगर अच्छा काम करें तो हमें लगता है कि हम उससे अपनी धार्मिकता को ले सकते But हैं। dear ones, let me clear, CBF Dwarka believes, and we all believe, the word clearly tells us that we cannot, no matter what we do, get the righteousness that God gives us. It is only God who can give the righteousness to us. We cannot claim it, we cannot grab it by our own way. और इस बात को हमें समझना ज़रूरी है कलीसिया के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी कि जो धार्मिकता के बारे में बात की गई है वो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है, वो हम अपने आप से नहीं ले सकते हैं, हम मांग नहीं सकते हैं। So what is this righteousness then? तो ये धार्मिकता या न्याय संहिता धार्मिकता जो शब्द है उसका मतलब क्या है? Dear ones, it's very simple. Righteousness, the word is very complex, but I will just put a very simple meaning to what the passage tells us. अगर हम धार्मिकता जो शब्द के बारे में मनन करें तो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स शब्द है, लेकिन मैं इस जो भाग हमने मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से हमने पढ़ा है उस भाग से मैं उसको सरलता से बताने की कोशिश करूंगा। The basic meaning of righteousness here is you're longing for God. और धार्मिकता का मतलब ये है, अगर सरल तौर से हम समझें, कि हम प्रभु की ओर हमारी जो चाह है या हमारा दिल है उसकी ओर लगा है। The relationship that he has now
corrected. We are working to build on that relationship. That is the righteousness that has been spoken here. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा जो टूटा जो रिश्ता था अदन से, उसको जब जोड़ दिया है, तो हम उस रिश्ते पर काम करने की कोशिश करते हैं। God has brought all of us into His presence. और परमेश्वर ने जो है अपने उपस्थिति में हम सबको लेकर आया है। But it is now a lot to depend on whether we long for Christ or not in our lives. और इस बात को हमें समझना और सवाल हमको ये पूछना चाहिए कि क्या हमारा मन उस प्रभु के उपस्थिति की कामना करता है, या हमें बड़ा मन करता है कि हम उसकी उपस्थिति में हमेशा बैठे रहें। Christ is saying that your longing, your thirst, your hunger should be just me, and it should be about God and nothing else. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराता और बताता है बड़ी साफ तौर से कि जब तुम भूखे और प्यासे होते हो, वो शारीरिक चीज़ों के लिए या इस दुनियाई चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन केवल तुम मेरे लिए और केवल मेरे लिए तुम भूखे और प्यासे रहो। It's a call this morning that comes from the word. It is asking each one of us to hunger and thirst for Christ. और आज का जो वचन है वो इस बात को बार बार हमें बता रहा है कि हमारा दिल जो है वो केवल एक ही चीज़ को करना चाहिए। वो क्या है कि हम उसके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहें हमेशा। It's amazing how Christ explains that in the passage too. So I'll just quickly ask you to go back to your Bibles and open it up. And when you see verse 6 of Matthew chapter 5, you see it says what? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Now, he's using verse 7, 8, 9 to explain, to give us some characteristics. That's what? Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemakers. And then you see what in verse 10? Blessed are those who are persecuted for what? So what is the righteousness that Christ in the examples giving here? He's asking us that we as CBF Dwarka, we should long to be merciful. We as CBF Dwarka, we should have a longing to be pure in heart. And third, he's asking us to be somebody who is longing to be a peacemaker. So here Christ lays out three things in front of us talking about what righteousness is. अगर हम इसको और अच्छे तौर से समझना चाहें तो 7वें, 8वें और 9वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? हम इस बात को पढ़ते हैं कि धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं। 8वीं में हम देखते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, या पीस मेकर जो हम जिनको हम देखते हैं। लेकिन जब हम 10वीं आयत में आते हैं, हम क्या देखते हैं? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो जब धार्मिकता को हम समझते हैं तो हम ये तीन चीज़ें जो हमने 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ा है, उस बात को हम देखते हैं कि वो है क्या। You see, there is a sandwich. Verse 6 is the top loaf, and verse 10 is the bottom loaf. And in between you see the three things that comes in: merciful, pure in heart, and peacemaker. तो अगर हम सैंडविच को देखते हैं कि ऊपर एक तबका होता है, दूसरा एक तबका होता है, उसके बीच में जो है जो हम चीज़ खाते हैं, जो मेन मटेरियल होता है, तो हम उस प्रकार हम 6वीं आयत को देखते हैं ऊपर का, और जो 10वीं आयत को हम देखते हैं वो नीचे वाला तबका होता है। उसके बीच में जो होता है क्या? ये तीन चीज़ें जो दयावंत होना, मन शुद्ध होना और मेल कराने वाले होना, इस बात को हम देखते हैं। A commentator says, God is asking each one of us seated here to work on our corrected relationship that we have. It is our responsibility to build our relationship with God, and while we build our relationship with God, we build our relationship with each other. और एक समीकरण करने वाले ने इस प्रकार लिखा है कि ये बात सच है कि हमें प्रभु अपने उपस्थिति में लेकर आया है, और जो संबंध टूट गया था उसको जोड़ दिया गया है। लेकिन ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रिलेशनशिप पर या फिर उस रिश्ते पर हम
काम करते रहें, अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं और जो बताए गए हैं 6वें, 7वें और 8वें आयत में, उन बातों पर ध्यान दे के हम उसको करने की कोशिश So it's करें। writing our relationship with God, or it's working on the relationship with God, but it's also working our relationship with people around us. और उसका उसका जो रिजल्ट होगा या फिर उसका जो Parinam. परिणाम होगा, वो हम क्या देखेंगे, आपस में जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो हमारा रिश्ता प्रभु ने जो सही किया है, वापस जोड़ा है, वो तो सही होता ही रहेगा, लेकिन उसके परिणाम से आपस के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे होते जाएंगे। Viewers, let me ask you this morning: और Are सवाल we है, are we building on a relationship with Christ? और सवाल यह है कि क्या हम उस परमेश्वर के साथ वो रिश्ते में क्या हम बढ़ रहे हैं? If we are building on the relationship with Christ, our relationship with each other will also be good. और अगर इस बात को अगर आपको देखना है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या नहीं, हम किस प्रकार जान सकते हैं? इस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता बढ़ रहा है या नहीं। Christ is telling this morning, CBF Dwarka, and each seated here, you need to be longing for mercy in your life. You need to be merciful to people around you. और परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रहा है कि जब हम उसके रिश्ते में या प्रभु के रिश्ते में आ जाते हैं, तो हमारा मन की जो कामना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कि हम दयालु हो सकें, एक दूसरे के लिए अपने बहुत आयत से हम वो दया He दिखा wants us to सकें। long to hate sin so that our hearts are pure towards God. और वो ये भी चाहता है कि हम जब उसके रिश्ते में बढ़ते हैं कि हम पाप से घृणा करने वाले हो सकें, ताकि हम और शुद्ध बन सकें He उसमें। wants us to be peacemakers. और तीसरी बात जो है कहता है कि हम मेल कराने वाले होने चाहिए। We are to hunger and thirst for these things. The righteousness, what Christ defines, is to build the relationship that He has given to us. और इस बात को जो है प्रभु यीशु मसीह बार बार दर्शाता है या बताता है कि इन चीज़ों पर हमारे ध्यान होना चाहिए जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं। तो ये दया, मन का जो शुद्धता है, और तीसरी बात है कि मेल कराने वाले हो सकें। Youngsters and the young ones and the old ones and all of us seated here, is Christ and His righteousness, is Christ our longing this morning? बच्चे, बूढ़े और जवान और सभी जन जो यहाँ बैठे हैं, क्या परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, और क्या हम उसके साथ जो रिश्ता उसने हमारे से कायम किया है, क्या हम उसमें बढ़ रहे हैं? ये सवाल हमारे सामने Let's आता turn है। to Psalms 42. और भजन संहिता 42 में हम देखेंगे। What does it say? Can we read it as a church together? क्या कहता है? Psalms 42. भजन संहिता 42। As a deer pants for the flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Dear ones, that's the intense longing that God wants to build in our lives this morning. और जो भजन लिखने वाला 42 में इस प्रकार कहता है कि जैसे हरनी नदी के जल के लिए प्यासी रहती है, उस प्रकार मेरा जो मन है वो तेरे वचन के लिए और तेरे लिए प्यासा I want रहता है। each one of us to spend time and find out the things that we hunger and thirst after this morning. और मैं चाहता हूं कि हम सब जो है थोड़ा समय निकाल के इस बात पर मनन करें कि आज हमारे जीवनों में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम जिसके पीछे हम भूखे और प्यासे God हैं। has brought us into His presence, but what are we longing for this morning? I want that question to be answered in my life and your life. और जब परमेश्वर ने एक भारी कीमत को चुकाकर उसने ये रिश्ता जो है हमसे जोड़ा है वापस और अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, इसलिए जो सवाल हमें सच्चाई से करनी चाहिए कि उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे दिलों में घर किए So हुए Christ हैं। lays out the problem that man, you will always constantly hunger and thirst for things. और इसलिए परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह इस धन्य वचन के द्वारा जो है इस बात को बताता है और स्थापित करता है कि जो मनुष्य की जो
समस्या। मूल समस्या है वो हमेशा ये रहेगी कि वो किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहेगा या किसी ना किसी चीज के पीछे If it भूखा और प्यासा is, if it रहेगा। is not Christ and writing that relationship, building on the relationship with Him, we will constantly hunger and thirst for things the world has to offer. तो बात ये है कि अगर हम परमेश्वर के पीछे भूखे और प्यासे नहीं होंगे या उसके धार्मिकता के लिए नहीं होंगे तो हम किसी और चीज के पीछे भागते He lays out रहेंगे। the problem. He says, you will do that, but here's the solution. Here's the provision. You need to long after me and things that I have to give to you. तो अगर समस्या ये है तो प्रावधान भी ये दिया गया है कि हमें जैसे भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि हमारे दिल की जो कामना है वो ये होनी चाहिए कि हम प्रभु के उस धार्मिकता के So लिए we see भूखे the और प्यासे we हों। see the problem, we see the provision, and finally let's see the promise that Christ lays out. तो हमने समस्या को देखा मनुष्य का क्या है, दूसरा हमने प्रावधान को देखा और तीसरा जो है मनुष्य के लिए क्या वाचा दी गई है, द प्रॉमिस जिसको हम देखते हैं। What does it say? I want all of you to learn, turn to your Bibles. Blessed are those who constantly hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. That's one of the most beautiful verse that you can see in the Word of God. क्योंकि छठवीं आयत अगर हम पूर्णता पढ़े तो क्या लिखा है, धन्य है वे जो उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। Dear ones, this is, if it was not written the way it was written, we and I and you will not know the problem that we have. Our problem is that we are constantly restless. We want the next thing. We hunger and thirst for the things of the world. We will never be satisfied. But Christ tells us, you long after me. That's the promise. You long after me, and I will satisfy you. लेकिन जो वाचा परमेश्वर हमें देता है, जो कि सच्चा वाचा है, वो ये है कि अगर तुम मेरी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होगे तो क्या होगा, वो हमें तृप्त करेगा। इस बात को हम देखते हैं। So when we look at this verse, I want you to spend, they shall be satisfied, and I want you to look at a little bit of grammar with me. और जब हम व्याकरण को यहाँ पे देखते हैं तो आप इस बात पे ध्यान दें, जो दूसरा भाग है इस आयत का, कि वे सब जो है तृप्त किए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। So when you see the usage here, they shall be satisfied. What is the first thing that comes to our mind? और जब लिखा है कि वे तृप्त किए जाएंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे मनों में क्या विचार आता है? Not? Okay. But it says they shall be satisfied. What does that mean? Huh? They shall be satisfied. Any other thing that comes to your mind? They don't have it and? Okay. All right. Let me put it this way. When it says they shall be satisfied, it is taking out what? It is taking out their own work. You know, the original grammar that is used here, there is a divine passive word that is used. That is, satisfaction is not something that they develop on their own. It is what? Given to them by God. और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ को हम जो यहाँ देखते हैं वो ये है कि वे तृप्त किए जाएंगे का मतलब ये है कि ये जो तृप्ति जो आएगी वो कहाँ, वो अपने कामों से नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर उसको देगा। It doesn't say they are satisfied. It says they shall be satisfied. Talking about, God says, if you long for me, if that's what your longing is, if that's what your thirst and your hunger is, I shall satisfy you. I will satisfy your soul. तो कहने का मतलब यह है कि उसमें ये नहीं लिखा है कि वे तृप्त हुए, लिखा है कि वे तृप्त किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम सच्चे रीति से उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं तो क्या होगा, हमें वो तृप्ति दी जाएगी। One commentator says our part is to seek, his part is to satisfy. What does it say? The commentator says our part is to seek. That's the responsibility. But whose part is to satisfy? God's part is to satisfy. और एक बाइबल के जो प्रचारक ने इस प्रकार लिखा है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है
कि हम उसकी खोज करें या उसके लिए हम भूखे और प्यासे हों, और वो क्या करेगा, वो हमें तृप्त करेगा। इस बात को हम And देखते the हैं। second thing that the grammar brings us, the word satisfied, they shall be satisfied. There is a concept called plenitude. You know, it is not about some little food here and there. It's not about some little gratification or satisfaction. It is said that God is going to give you in abundance things that you can't even imagine, way more than what you want. You will be, the plenty, the abundance will be given to you, and that's how God is going to satisfy. और जब हम इस तृप्ति के बारे में, तृप्त कैसे किया जाएगा, हम इस बात को हम समझते हैं तो छोटे छोटे भागों में नहीं, लेकिन अगर उस मूल शब्द को हम समझें या व्याकरण को अगर हम सही रीति से समझें तो क्या कहता है लिखने वाला या परमेश्वर क्या कह रहा है कि बहुतायत से तुम्हें तृप्त किया जाएगा। Dear ones, Christ is ready and here, and that's the promise he puts out to the problem that the mankind has. और यहाँ पर जो है एक समाधान या फिर जो वाचा वादा। है, वादा जो मनुष्य से किया गया है, उसका पूर्तिकरण को हम यहाँ देखते हैं। So what's the application one you draw? लेकिन इससे हम क्या समझते हैं आज के जीवन में, हम इसको हम किस प्रकार देख सकते हैं? Do we believe that we have a problem? सवाल पहला यह है कि क्या हम इस बात को अंगीकार करते हैं या समझते हैं कि हमें दिक्कत है You या know, समस्या we are है? saved people, we are brought into his presence, but we still long after things which are not God's. और ये बात सच है कि हम उद्धार पाए विश्वासी हैं, लेकिन अगर सच्चाई में अगर हम अपने मनों को टटोलें तो क्या होगा? हम इस बात को समझते हैं कि आज जो ये संघर्ष है हमारे जीवन में कि हम उन चीज़ों के लिए खोज करते हैं या उन चीज़ों के लिए हम भूखे और प्यासे हैं जो कि प्रभु नहीं है। Dear ones, if you are feeling sitting here restless, and you feel that the next thing that you buy, the next thing that you're going to go for, the next vacation, the next thing that you're going to buy on Amazon, or a lot of time of scrolling on TikTok, on Instagram is going to satisfy your soul, Christ says, never. That's never going to happen. अगर आज हम अपने बेचैन मन के साथ अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम ये सोचते हैं कि अगला एक चीज़ अगर हम खरीद लें तो हम खुश हो जाएंगे या वो तृप्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, या फिर सोशल मीडिया में जाके हम फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, तब हमें तृप्ति आएगी, तो ये बात सच नहीं है और ये हम सब जानते हैं। Dear ones, there is no way that world has anything to offer that can satisfy our souls. क्योंकि वास्तविकता ये है कि इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे दिलों को शांत या तृप्त कर सके पूर्णतः। Where do we see Christ in this? और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को हम कहाँ देखते हैं? Dear ones, when I look at this verse, I have to ask you to turn to Psalm 22. और भजन संहिता 22 और उसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे। Psalms 22 verse 15. Let's, as a church, read that. As we come here in front of the table, as we ready to partake from it, let's look at where we see Christ in this passage. Do we have that in front of us? It says, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. Talking about extreme thirst at this point of time. And when we go in front in the Bible, in the Testament, when we see the crucifixion, what does it say? Christ is crying out loud, saying what? I thirst. और जब हम भजन संहिता 22 और उसके 15वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। When he was thirsty, he was looking to be satisfied, something to quench it. But nothing happened. There was nothing that was from the divine that he got that he could be satisfied. लेकिन जब हम उस क्रूस को निहारते हैं, उस क्रूस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कराहता है वहाँ क्रूस से कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन कोई
संतुष्टि उसे नहीं He मिलती है, doesn't get any divine satisfaction on the cross. क्योंकि एक आध्यात्मिक ईश्वरीय जो संतुष्टि। संतुष्टि या तृप्ति उसको क्रूस पर नहीं दिया जाता है। इस बात को हम We do देखते see हैं। that the people give him vinegar to drink. और जो देखते हैं कि वहाँ जो लोग थे उसने उनको क्या दिया, प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया, सिरका दिया। Have you tried drinking vinegar? कभी आपने सिरका पीने की कोशिश And की this है? vinegar, if you go back, I'm not getting into it, it's terrible. और But when Christ is looking for the divine satisfaction, the communication to come back, there is absolutely nothing. He says, my God, why have you forsaken me? There is nothing. लेकिन जब हम उसके कराहने को देखते हैं या सुनते हैं तो कहता है कि उसने उस तृप्ति को जो उसके पिता से आनी थी उसको वो नहीं मिला, लेकिन वो क्या कहता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Dear ones, he thirsted and he died, and he was not satisfied. So that we who hunger and thirst may be satisfied, not for now, but for eternity. लेकिन जब हम उस क्रूस को निहारते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे दर्द और पीड़ा से होके गया, लेकिन उसके साथ वो भूखा और प्यासा रहा उस क्रूस पर, ताकि हम बचाए जाए। और उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमारे मन जो है उसकी धार्मिकता से तृप्त हो जाए। Dear ones, Christ is asking, what is that we hunger and thirst for as a church this morning? सवाल आज हमारे सामने ये है और परमेश्वर वो करता है कि आज व्यक्तिगत तौर पे विश्वासी होने के नाते और एक कलीसिया के तौर पे आज हम किस चीज़ के लिए भूखे और I want प्यासे you to हैं। go back and do a assessment of your life, and I will go back and do it for my own. और हम इस बात की जांच करें, अपने आप से ये सवाल करें कि हमारे मन किन चीज़ों में लगी हैं If we और want to किसके be लिए हम भूखे satisfied, प्यासे हैं। Christ is calling all of you to build on the relationship that He has corrected, He has established, but our job is to build on it. और क्योंकि एक जो रिश्ता उस अदन के बगीचे में टूट गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के कारण और अपने जीवन को देने के कारण क्या हुआ, उस रिश्ते को वापस जोड़ दिया गया है। और हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि हम उस रिश्ते को और आगे बढ़ाएं और उसमें हम बढ़ें। He said, he cried, I'm thirsty. There was no satisfaction. But as we partake from the table, He did that so that we and our souls may be satisfied. Let's partake, let us do our examination ourselves, and let us make this morning as something that we crave for, we long for, the person of Christ in our life. और जब हम इस रोटी और प्याले से भाग लेते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि उसने अपने आप को देकर, क्योंकि वो भूखा और प्यासा उस क्रूस पर रहा, उसने हमारे जीवनों को तृप्त किया है। और जब हम भाग लेते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में पूर्णता उसने धार्मिकता के द्वारा वो तृप्ति हमारे जीवन में दिया है। इसलिए आइए हम पूरे मन से उस रिश्ते में बढ़ने की कोशिश करें और प्रभु को अपना पूर्णता केवल उसी की खोज हम करते रहें। ये हमारी प्रार्थना May है। name is be glorified. प्रभु के नाम की स्तुति हो।